Sí, algo realmente me arrepiento. Ella no habérselo contado desde el principio. Ignacio, ¿qué es lo que te pasa? Últimamente te veo que estás preocupado, apático. Ustedes ganan, pero van a perder mucho más. ¿Cómo quieres que te llame? 11, Marcela. Te busco entre las ganas de mi cuerpo. Te busco en la mañana y no te encuentro. Te busco en el olvido. Pregúntale al silencio. Te busco en el recuerdo y no te encuentro. Te busco en el suspiro. Ya añoran viejos tiempos. Te busco en el rocío y no te encuentro. Si la vida quiera, todo será a tu manera. El amor es mi razón. Puedo lo brillante de las flores y reconocer tu alma que la llena el sol. Ella seguirá húmeda y fría, solo volverá a la vida si regresas, corazón. Ella seguirá húmeda y fría, solo volverá a la vida si regresas, corazón. Y regresas. Adriano pasó por la casa. Él hizo eso. Con todo lo que hablamos y con todo el tiempo que llevo pensándolo, decidí venir a verte. Angélica, discúlpame. Yo no tenía por qué cuestionarte de la manera en que tú quisiste tener tu sueño. Pero respóndeme una cosa. Sé sincero. Si en nuestra primera conversación yo te hubiera dicho que estaba embarazada, ¿cómo habrías reaccionado tú? No lo sé. Además, yo creo que es demasiado tarde para eso. Ahora lo que más te preocupa es que mi embarazo es de otro hombre, ¿no? La verdad es que eso es lo que me tiene en la cabeza sin lío. Yo te quiero. Y sé que tú también me quieres a mí. Pero pensar que todo va a estar bien entre nosotros... और लड़के के साथ एक केपे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके ज़ैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज़ैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक प्लॉट था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनी का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम ज़ैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया।
زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ اسی ملاقات کے بعد زید نے عائشہ کو بات چیت کے لیے قائل کر لیا۔ چند دنوں میں دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور زید نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویورز، زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن عائشہ کو زید کے بارے میں کچھ عجیب لگتا تھا۔ کبھی وہ رات کو کالز کا جواب نہیں دیتا تھا تو کبھی اس کی کہانیوں میں جھول محسوس ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے زید کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیپے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیپے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زید نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی، لیکن جب عائشہ نے ثبوت دکھائے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ زید ایک فراڈ تھا جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر ان سے پیسہ لوٹتا تھا۔ ویورز، عائشہ نے زید کی اصلیت پولیس کے سامنے ظاہر کر دی اور اس کے خلاف کیس درج کروا دیا، اور اس کے بعد عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا ضروری ہے مگر آنکھیں بند رکھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک خوبصورت شام تھی۔ لاہور کے مشہور مارکیٹ میں ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ اور لوگوں کا رش تھا۔ عائشہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لڑکے اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ عید کی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ دونوں بہنیں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھا کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ لڑکا کیوں ہمیں گھور رہا ہے؟ عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا پتا، شاید تمہیں پسند آ گیا ہو، فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویورز، لڑکا جو اپنا نیم زید بتاتا تھا اچانک عائشہ کے قریب آیا اور کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ کا پرس گر گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً شکریہ ادا کر دیا۔ زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ اسی ملاقات کے بعد زید نے عائشہ کو بات چیت کے لیے قائل کر لیا۔ چند دنوں میں دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور زید نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ویورز، زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی دنیا دکھانے کے لیے اسے قیمتی تحفے دینے لگا اور یقین دلانے لگا کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن عائشہ کو زید کے بارے میں کچھ عجیب لگتا تھا۔ کبھی وہ رات کو کالز کا جواب نہیں دیتا تھا تو کبھی اس کی کہانیوں میں جھول محسوس ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے زید کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیپے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنے دیکھا کہ زید ایک اور لڑکی کے ساتھ ایک کیپے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی الفاظ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اس نے عائشہ سے کہے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے زید سے سامنا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ زید نے پہلے تو بہانے بنانے کی کوشش کی، لیکن جب عائشہ نے ثبوت دکھائے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ زید ایک فراڈ تھا جو لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر ان سے پیسہ لوٹتا تھا۔ ویورز، عائشہ نے زید کی اصلیت پولیس کے سامنے ظاہر کر دی اور اس کے خلاف کیس درج کروا دیا، اور اس کے بعد عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گی۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا ضروری ہے مگر آنکھیں بند رکھنا نہیں چاہیے۔ اپنے رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ایک خوبصورت شام تھی۔ لاہور کے مشہور مارکیٹ میں ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ اور لوگوں کا رش تھا۔ عائشہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لڑکے اپنی بہن فاطمہ کے ساتھ عید کی خریداری کے لیے نکلی تھی۔ دونوں بہنیں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا جو ایک مہنگے لباس میں ملبوس تھا کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ فاطمہ، یہ لڑکا کیوں ہمیں گھور رہا ہے؟ عائشہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا پتا، شاید تمہیں پسند آ گیا ہو، فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویورز، لڑکا جو اپنا نیم زید بتاتا تھا اچانک عائشہ کے قریب آیا اور کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ کا پرس گر گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً شکریہ ادا کر دیا۔ زید کا انداز مہذب تھا اور بات کرنے کا انداز بہت شائستہ تھا۔
उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनी का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनी का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था।
उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था।
उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था।
उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनी का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनी का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था।
उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था।
उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था।
उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया, ये क्या हो रहा है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा, क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया, ये क्या हो रहा है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा, क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था।
उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद